Dear students, once again welcome back to the Western International School online teaching. So students, as you know, in the first lecture already we have discussed about some some basic information about light. So now today, and one more thing. So in the first lecture what we discussed, I think you have not gone through it. आपने वो चीजों को study नहीं किया है. So first just go through it, then just go for the next one. Otherwise आपको चीजें समझ में नहीं आएगी. So in the first one we have discussed about law of reflection. Clear? So in the first lecture we have discussed about some law of reflection, that angle of incident and angle of reflection, that we have discussed. Now today we will discuss about one more important topic about regular and irregular reflection. Now, so before this we will discuss about one more small point, lateral inversion. So lateral inversion. See, so students, lateral inversion आपने नॉर्मली कहीं पढ़ा नहीं है, बट ये एक बेसिक एक ऐसा फिनोमिना है जो कि हमारे रेगुलर लाइफ में रोज ये होता है. क्लियर? ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो रेगुलरली रोज हमारे सराउंडिंग में ये होता है. सो सबसे पहले अगर इसकी बात करें तो आई थिंक जैसे कि आपने कहीं मिरर में देखा होगा. ओके, जब आप मिरर में देखोगे ध्यान से तो आपका जो लेफ्ट ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल, ओके, जब आप मिरर में ध्यान से देखोगे तो आपका जो लेफ्ट ऑब्जेक्ट है, ओके, अगर आपने अपने हाथों में कुछ पकड़ के रखा है लेफ्ट हैंड में, तो अगर लेफ्ट वाला पोर्शन है तो वो आपको मिरर के अंदर राइट दिखाई देगा. क्लियर? एंड जो राइट वाला पोर्शन है वो आपको मिरर के अंदर लेफ्ट दिखाई देगा. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो पोजीशन है वो थोड़ी सी इंटरचेंज है. सो लेफ्ट विल बी अपीयर एज अ राइट वन, ओके, एंड द राइट वन विल बी अपीयर एज अ left one. So clear? And that this phenomena is known as lateral inversion. So that means it's the opposite. Clear? Definition I write. So image formed by an mirror, the left hand you can write, the left of the object will appear as a right of the object, same as it is, and the right of the object will appear as left of the object. Clear? Okay, we can write appear as a right. Okay, this अगर ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा. And the right of the object will appear as a left. Clear? अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा स्टूडेंट्स. So मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ. So now I think it's clear. So the main conclusion क्या था कि अगर कोई भी इमेज मिरर में फॉर्म होती है तो द लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल अपीयर एज अ राइट एंड द राइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल अपीयर एज अ लेफ्ट. क्लियर? दिस इज नोन एज लेटरल इनवर्शन. क्लियर? समझ में आ गया ना? तो ये जो फिनोमेना है, सपोज ये लेफ्ट, ओके, फॉर एग्जांपल ये राइट है तो ये आपको मिरर के अंदर दिखाई देगा लेफ्ट वन, और अगर ये लेफ्ट है तो ये आपको मिरर के अंदर दिखाई देगा द राइट वन. क्लियर?
So the interchange of the position from left to right and the right to left, that is called a lateral inversion. Clear? So I hope ये आपको समझ में आ गया. So अब हम यहाँ पे बात करते हैं ओके रिफ्लेक्शन के बारे में. For example, see, remember one thing, type of reflection. So normally there are two type of reflection. Clear? First one it is called regular reflection, and the second one called irregular. Chalo, clear? Regular and irregular. But one more name we can give. Okay, for example, ये जो irregular है, okay, it is also called diffuse. Okay, चलो clear. Now the next part, let regular and irregular. See, अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? For example, this is one surface. This is one surface. But the most important part, it is smooth surface. So now, so students, अगर ये आपको समझना रेगुलर रिफ्लेक्शन तो स्मूथ सरफेस. सी अभी क्या है, दिस इज वन ऑफ द रे. तो क्वेश्चन क्या है कि अगर कोई भी रे स्मूथ सरफेस पे इंसिडेंट होगी, so that ray will go in a clear. सी मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं इसके बारे में. तो स्टूडेंट्स यहां पे थोड़ा सा ओके स्पेस का इश्यू है ना. सो स्टूडेंट ये फर्स्ट रे है जो इंसिडेंट हुई, सेकंड ये रे है जो इंसिडेंट होकर यहां जा रही है, एक ये है जो. सो स्टूडेंट देखो यहां पे जो मेन कंक्लूजन क्या है कि ये क्या है, दिस इज अ रे. अब ये कैसे रे है? ऑल द रेज आर पैरेलल. ये क्या है? ये रे है जो कि पैरेलल है. सो अगर क्वेश्चन क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, अगर कोई भी रे पैरेलल डायरेक्शन में आएगी और अगर यहां पे टकराने के बाद वो अगेन सेम एज इट इज पैरेलल फॉर्म में वापिस जाती है, दैट इट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन. क्लियर? नाउ द डेफिनेशन यू कैन मेक बाय योरसेल्फ. सी, सो दिस इज अ पैरेलल लाइन, दिस इज अ पैरेलल लाइन, दिस इज अगेन अ पैरेलल लाइन. बट ये तो इंसिडेंट थे, बट यहां पे टकराने के बाद जो वापस जा रही है, दिस इज ओके. तो ये क्या है यहां पे कि मतलब क्या है कि अगर हम ध्यान से देखिए तो रेस पैरेलल फॉर्म में आई थी और सेम एज पैरेलल फॉर्म में वापस चली गई. ओके, तो दैट इट इज कॉल्ड अ रेगुलर रिफ्लेक्शन. So the definition you can write when a parallel beam of light, this is called parallel, when a parallel beam of light is incident on a smooth surface, then it will go again in a parallel form. Then it is called regular reflection. Now clear? So the definition I'm not writing. Now the next part. So again, see. This is one surface, clear? This is one surface and the surface is, it is a rough surface.
सो नाउ क्लियर। सो थोड़ा सा यहां लिख दो, आई थिंक विजिबल नहीं है। चलो, सब क्वेश्चन क्या है कि अगर यहां पे सेम है, यहां पे जो हमने किया था पॉइंट, उसका टोटल ऑपोजिट। अब टोटल ऑपोजिट क्या आएगा कि अगर कोई भी रे पैरेलल फॉर्म में आ रही है, बट वो क्या होगी, वो यहां पे टकराने के बाद पैरेलल फॉर्म में वापस नहीं जाएगी। क्लियर। एंड दैट रे इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। सो नाउ फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ वन रे। ओके, सो ये क्या है, ये कुछ रे हैं जो कि यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है। पर स्टूडेंट ये जो रे है, ये टकराने के बाद सेम जैसे ये पैरेलल फॉर्म में वापस गई थी, ये वापस पैरेलल फॉर्म में नहीं जाएगी। मतलब इसका जो डायरेक्शन वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्लियर। माइट भी ऐसा हो सकता है कि जो रे है वो इस डायरेक्शन में ऐसे पॉसिबल हो। क्लियर। सो ऐसा पॉसिबल है स्टूडेंट कि ये ऐसे डायरेक्शन में पास हो सकती है। क्लियर। सो ये जो है दैट इज कॉल्ड अ irregular reflection. So now what we can write, when a parallel beam of light is incident on a rough surface, then it will spread in all direction. So students, here what we will write, then it will spread in all direction, or we can write the rays will not be parallel to each other. Clear? So इसका जो definition मैं आपको बताया था फिर से। So यहां से लिख रहा हूं, when a parallel beam of light is incident on smooth surface, then it will remain parallel. It will remain parallel after reflection, and this is called regular reflection. So I hope students regular and irregular दोनों में आपको काफी एक कॉन्सेप्ट जो एग्जाम्पल है, दोनों के बीच में एक डिफरेंस बिटवीन, ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर। सो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, इसके पहले का जो टॉपिक है फर्स्ट वाला वीडियो, जस्ट ट्राई टू वॉच इट अगेन, तो ये आपको काफी ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। थैंक यू वेरी मच।